بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں اور عزیز بہنوں، میں ہوں یوسف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں دعوت جنت کا راستہ۔ دوستو، ادھر کافی دنوں سے ہمارے ساتھی کمنٹس کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ پرانے ساتھیوں کو جوڑنے کے لیے کیسے محنت کریں۔ تو پرانے ساتھیوں کو دوستو سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ پرانے ساتھی ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہیں۔ جو پرانے ہیں انہوں نے زیادہ قربانیاں دی ہیں، زیادہ مشکلات اٹھائی ہیں، زیادہ پریشانیاں جھیلی ہیں، وہ ہمارے لیے سب سے اہم ہیں۔ اور یہی باقاعدہ ذمہ داروں کی طرف سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ پرانوں کو جوڑو، پرانوں کو جوڑو۔ لیکن ابھی پرانوں کو جوڑیں کیسے؟ تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیا کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا ہے۔ اور ایک خاص بات ہے یہ کہ آپ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اگر کسی مخصوص ویڈیو پہ، مخصوص ٹاپک پہ آپ جاننا چاہتے ہیں، کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بات کر سکتے ہیں ہم سے، کامنٹس باکس میں لکھ دیا کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو دوستو، بات چل رہی تھی یہ کہ پرانے ساتھیوں کو کیسے جوڑیں۔ تو پرانے جو ہیں ان کے اندر للک تو بہت ہوتی ہے کام کی، لیکن کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ کچھ وجوہات کی بنا پہ اور کچھ اعذار یعنی عذر کی بنا کی وجہ سے ساتھی کچھ کام چھوڑ کے ہٹ جاتے ہیں، کنارے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ کنارے جاتے ہیں تو جو نئے آنے والے ساتھی ہیں وہ کام کو سنبھالتے ہیں اور پرانوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ جو نئے ساتھی آئے ہیں کام کرنے والے، وہ اتنے جوش و خروش سے آتے ہیں، اور جب آتے ہیں وقت لگا کے تو یہ سوچ کے آتے ہیں کہ کام ہمارے ہاں تو ہو ہی نہیں رہا، اتنے سارے پرانے ساتھی ہیں تو کوئی کام ہی نہیں کر رہا۔ بھئی یہ تو دیکھو، تم ابھی وقت لگا کے آئے ہو، لیکن وہ تو نہ جانے کب سے وقت لگاتے چلے آ رہے ہیں، نہ جانے کتنی مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا ہے، نہ جانے کتنی انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ یہ بھی تو سوچو۔ آپ تو ابھی وقت لگا کے آئے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس جو کچھ کر رہے ہیں سب ہم ہی کر رہے ہیں۔ دعوت کی محنت کے خاصہ یہ ہے کہ اس میں ہم سب کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی یہ سمجھیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور ہمارا بھائی کچھ نہ کر رہا ہو پھر بھی ہم یہ سمجھیں کہ وہ بہت کچھ کر رہا ہے۔ تبھی جوڑ پیدا ہوگا، ورنہ جوڑ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک اس کام میں، اس دعوت کی محنت میں جوڑ نہیں ہوگا، آپس میں اتفاق و اتحاد اور محبت نہیں ہوگی، دوستو اس کے پورے فائدے وجود میں نہیں آئیں گے۔ آج جو کام خوب ہو رہا ہے، محنتیں خوب ہو رہی ہیں، لیکن اس کے فائدے، اس کے نتائج اس طریقے سے ظاہر نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اکثر ساتھی مشورے میں بھڑ جاتے ہیں اور دلوں کے اندر جو ہے کچھ نا اتفاقیاں پڑی ہوئی ہیں۔ کئی مساجد میں یہ دیکھا، کئی علاقوں میں یہ دیکھا کہ مسجد وار جماعت کے ساتھی آپس میں اتحاد و اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے بہترین محنت ہوتی ہوئی اور محنت کی جڑ ہی ختم ہو گئی، کام ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ دوستو بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، جو کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے۔ اگر ہم دعوت کی محنت کر رہے ہیں تو اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں۔ ہم اپنی رضا سے نہیں کچھ کر سکتے، سب کچھ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنا یہ یقین بنانا ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے نئے ساتھیوں سے یہ گزارش کریں گے کہ جب وہ وقت لگا کے آتے ہیں تو چھوٹے بن کے کام کریں، بڑے بن کے کام نہ کریں، کیونکہ جو پہلے سے وقت لگائے ہوئے ساتھی ہیں ان میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا اپنی جو ہے وہ میں ضرور آ جاتی ہے۔ ہاں، اللہ ماشاء اللہ ایسے بھی ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جن کے اندر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگنا چاہیے۔ یہ جو اندر کی میں ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ سیدھی حدیث ہے۔ تو پرانے ساتھیوں سے بھی ہم عرض کریں گے کہ وہ جو بھی کام کریں، چاہے زیادہ کریں یا تھوڑا کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اور جو نئے ساتھی ہیں ان کو یہ چاہیے کہ بڑوں کی عزت کرتے ہوئے، اکرام کرتے ہوئے، اور پھر اسی محنت میں جڑ جائیں جس محنت کو وہ سیکھ کر آئے ہیں۔ جس محنت کو وہ سیکھ کے آئے ہیں اس محنت کو بڑوں کے اکرام کے ساتھ لگیں۔ یہ نہیں کہ ہم آئے ہیں اب میری ہی چلے گی،
अरे भाई अभी तुम नया नया वक्त लगा के आए हो, अभी तुम्हें तजुर्बा नहीं है दावत की मेहनत का, तो अभी हम लोग भी दाल ही नहीं जानते हैं कि दावत की मेहनत का दाल क्या होता है, और हम लोग चल देते हैं अपनी चलाने। तो दावत में दोस्तों अपनी नहीं चलेगी। दावत की मेहनत अगर करना है तो अपने नहीं चलाना है, बल्कि मशवरे के तहत काम करना है। जो मशवरे में तय होगा उस एतबार से काम करें। दूसरी बात यह है कि हमारे एक साथी थे, वो बताने लगे, एक कारगुजारी बताने लगे एक इलाके की, कि शहर के जिम्मेदार थे, बड़े जिम्मेदार, जो सबसे बड़े जिम्मेदार इलाके के, और पता नहीं क्या वजह हुई और क्या रीज़न हुआ कि अचानक वो काम से दूर होते चले गए। नतीजा ये हुआ कि फिर उनका लिबास भी बदल गया, उनकी हैयत भी बदल गई, और उनके हाल चाल सब कुछ बदल गए। अब जब मेन आदमी जो था, जो जिम्मेदार इलाके का था, जब वही बदल गया तो उसके नीचे काम करने वाले थे वो भी बेचारे थोड़े बहुत ढीले पड़ गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम चलता रहा। लेकिन हर आदमी कोशिश करता रहा समझाने की कि हमारे वो बड़े जिम्मेदार साथी अगर जुड़ जाते तो बड़ा फ़ायदा होता। खैर साथी भी आते थे, जमातें भी जाती थी, मुलाकात करती थी। नहीं, एक जमात कहीं की आई और उनसे साथियों की बातचीत हुई कि हमारे वो साथी थे, जब वो जुड़े हुए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे ढंग से काम चल रहा था, बड़ा फ़ायदा था। लेकिन अफसोस कि उनके हाल और चाल दोनों बदल गए। तो उनमें दो बहुत पुराने साथी थे, कहने लगे कहाँ मिलेंगे इस वक्त। पता चला घर पे हों, शायद घर पे गए, पता चला शायद दुकान पे होंगे, दुकान पे गए तो पता चला कि शायद किसी थिएटर में बैठे हैं, देख रहे हैं कुछ। अब ये अल्लाह वाले ऐसे कि पहुंच गए थिएटर के बाहर। एक साथी अंदर चला गया, दो साथी बाहर खड़े हुए। तो साथी उनसे कह रहा चलिए हजरत बाहर चलिए। वो कह रहे चल पूरी करके आते हैं, अभी नहीं, अभी बाहर नहीं आएंगे। बहुत समझाया बुझाया, बहुत खुशामद के नहीं आए। और ये तीन के तीन साथी बाहर आके बैठ गए धरना देके, और वो रोना, वो गिड़गिड़ाना अल्लाह के सामने। लोग देख रहे हैं, इन्हें कोई परवाह नहीं। रोना गिड़गिड़ाना चालू, अल्लाह से लव लगाए हुए कि अल्लाह इस साथी को हमें दे दे, इसे पिछली वाली हालत में हमें वापस कर दे। और अल्लाह की मर्जी कि अल्लाह ताला को कब किसका रोना पसंद आ जाए। अगर ये कि वो बाहर निकले, बहुत नाराज से निकले, लेकिन फिर इन लोगों को देख के पिघल गए। अल्लाह ने दिल में कुछ तरस डाल दिया और आए, और इन साथियों ने फिर से उनकी खिदमत और उनकी खुशामद शुरू कर दी। इन साथियों ने फिर से उनकी खूब खुशामद करना शुरू कर दी। हजरत चलिए साथ में चलिए, हजरत अल्लाह के घर में चलिए, मस्जिद में चलिए हजरत। खैर खुशामद दरामद करके प्यार मोहब्बत से लेके आए, और अल्लाह ने दिल तो नरम कर ही दिया था। आके बैठे, बातचीत हुई, बात सुनी बड़ी इज्जत के साथ। और जो दूसरे साथी आए उनको भी समझा दिया गया, सब ने बड़ा इकराम किया, बड़ी इज्जत के साथ पेश आए। और फिर रात में क़याम भी किया मस्जिद में। गर्ज ये कि वो जमात के साथियों ने उनको 2-4 दिन अपने साथ में लगाया, 3-4 दिन साथ में लगवाए इनके, और अल्लाह ने फिर उनके जहन को बदल दिया। तो कहने का मकसद ये था कि पुराना बहरहाल पुराना ही रहेगा। अगर वो किसी वजह से इधर उधर बहक भी गया तब भी पलट के फिर आएगा। इसीलिए हमारे जो बड़े ज़िम्मेदार हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते हैं कि पुरानों को जोड़ो, जो जमा पूंजी है उसे संभाल के रखो, फिर आगे की सोचो। और जब तुम जमा पूंजी अपनी कमाते चले जाओगे और आगे कितना भी तुम बिक्री करते चले जाओ, उससे ज़्यादा फैज़ होने वाला नहीं। तो इसीलिए हमें पुरानों को खुशामद से, तरामत से, इकराम से, सबसे बड़ी चीज़ इकराम जो है बड़ी अहम चीज़ है कि बड़ों की इज्जत करें। जो हमारे पुराने हैं उनकी तकरीम करें और हर तरीके से उनका ख्याल रखें। यही नहीं कि बस ज़बानी हो ख्याल, बल्कि अमलन भी ख्याल रखें। किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी चीज़ की परेशानी हो तो हर वक्त उनके साथ रहें और उनके साथ खड़े हों कि हम आपकी हर हाल में आपकी मदद के लिए हाजिर हैं। आप हमें हुक्म करें, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस तरीके से जब बड़ों का इकराम करते रहेंगे तो बड़े कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, और जब बड़े जिम्मेदार छोड़ के नहीं जाएंगे तो अल्लाह ताला उनकी बरकत से नए नए साथियों को काम पे खड़ा कर देंगे। तो इसलिए बहुत अहम बात है दोस्तों कि हमें अपने पुरानों को प्यार से, मोहब्बत से, चाहे वो 4 माह वाले हों, चाहे वो चिल्ले वाले हों, चाहे वो 2 बार 4 माह लगाए हों, चाहे वो बैरून लगाए हों, सभी के साथ इकराम के साथ और इखलाक के साथ पेश आना है और बड़े प्यार और मोहब्बत से उन्हें जोड़ना है। भाई उनको हम कोई तनख्वाह नहीं दे रहे, वो तो अल्लाह की रज़ा के लिए लगे थे, और जब छोड़ा उन्होंने तो उनका कोई
दुनियावी नुकसान नहीं हुआ। हाँ, ये है कि दीनी नुकसान तो बेशक बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसलिए कोशिश ये करना है कि अपने से बड़ों की, अपने से बड़े जिम्मेदारों की, पुरानों की खूब खैरियत दरियाफ्त करते रहें, उनकी खिदमत में हदिये पेश करते रहें, ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ भाई हमारा कुछ इकराम हो रहा है। तो इस तरीके से जब हम पुरानों की इज़्ज़त और तकरीम करते रहेंगे और इज़्ज़त और एहतराम करते रहेंगे तो पुराने साथी हमारे जुड़े रहेंगे। और जो जुड़े हुए नहीं हैं तो उनके पास जा जाकर कभी हदिया लेके पहुंच गए, कभी मिसवाक लेके पहुंच गए, कभी फल लेके पहुंच गए, कभी उनके घर पे पहुंच गए, कभी कि हम खैरियत लेने आ गए, बस ऐसे ही वहाँ जाके उनको जो है तबलीग नहीं करना है, जाके सिर्फ ये कहें बस हम तो ऐसे आपकी खैरियत लेने आए थे, आप हमारे पुराने साथी, आप हमारे बड़े हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं भाई, आप हमारे, आपने लोगों ने माशाल्लाह बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। इस तरीके से हदिये पेश करें। कभी खुशबू ले जाके दे दी, कभी टोपी जो है दे दी, कभी घर पे पहुंच गए, कभी दुकान पे पहुंच गए, जाके 2-4-10 मिनट बैठ के खैरियत मालूम कर ली। तो इस तरीके से जाके और अपनी कारगुजारी भी बताएं कि आजकल ये काम चल रहा है, आजकल जो है सह रोज़ा की इतनी निकल पा रही, फला मस्जिद में यह हाल है, फला मस्जिद से ये इतनी निकल रही। इस तरीके से कारगुजारी पेश करते रहें तो उन्हें लगेगा कि हाँ, लगता है ये लोग हमारी कुछ हमारा इकराम कर रहे हैं, कुछ तकरीम कर रहे हैं। और फिर बाद में चलते चलते जाकर कोशिश करिएगा, थोड़ा सा आइएगा, थोड़ा सरपरस्ती हो जाएगी हम लोगों की। इस तरीके से बात करेंगे जब बड़ों की, जब जिम्मेदारों की, तो पुराने साथी जुड़ेंगे और जुड़ते रहेंगे। जो नहीं जुड़ रहे हैं वो भी इंशाअल्लाह एक दिन जुड़ेंगे। लगे रहें और अल्लाह से दुआ करते रहें। अल्लाह से दुआ तो असल है, खिदमत भी करते रहें, हदिया भी पेश करते रहें और मुलाकातें भी करते रहें, साथ में अल्लाह से रो रो के उनके लिए दुआएं भी करते रहें। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि एक न एक दिन वो ज़रूर इंशाअल्लाह पलट के वापस आ जाएंगे। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे। इस हमारी गुजारिश ये है कि आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें और हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें और मुमकिन हो तो कमेंट कर दिया करें, लिख दिया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और एक हमारा दूसरा चैनल है मसाइल के एतबार से मुकम्मल दीन, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो है लिंक दे दिया गया है, वहाँ जाके आप डायरेक्ट जा सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।